Residents of Kandhar or Kandhar village in Uttarakhand, tribal region of Jaunsar Bawar, have passed a social bylaw limiting the gold jewelry married women can wear at wedding and family function. जब भी हम ट्राइब्स के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वी से ट्राइब्स आर पुअर, तो क्या हम पूरे ट्राइब को लेकर के प्लान करते हैं, सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट इज ऑलवेज फैमिली बेस्ड। ऑब्वियसली किसी भी कम्युनिटी में अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। तो फैमिली बेस्ड जब अप्रोच है, तो व्हाई नॉट दैट पॉवर्टी शुड बी फैमिली बेस्ड क्राइटेरिया? व्हाई शुड बी लेबल्ड एज ए ट्राइब और ए शेड्यूल कास्ट और थिंग्स लाइक दैट? फ्रेंड्स, आपको नजर आ रहा है दिस इज मैप ऑफ उत्तराखंड, बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट माय research with Surgati Chemoli, but a very important area often neglected in discussion, the area of Jaunsar Bhagar in district Dehradun. Fieldwork by Professor D.N. Majumdar, legendary Professor D.N. Majumdar. Then subsequently by Professor Nazim Hassan for his PhD. And he wrote a book also, Bonded Forever, as good as a classic, you can say. And then P.C. Joshi, our beloved P.C. Joshi. But to begin with, my area of research is quite in the north. We used to go from Rudipur, Champavat, then you have Loha Ghat, all those things. You had Bhartula, you had Banshari, and then different routes for Chamoli and Uttarkashi. Here you had Badrinath and Kedarnath, and here you have in Uttarkashi you have Gangotri and Yamunotri. We are here talking about Dehradun, warm area from my point of view. क्योंकि जब भी हम फील्ड से आते थे और कभी भी हम देहरादून पहुंचते थे, तो मन करता था कि तुरंत दिल्ली पहुंच जाएं, क्योंकि देयर वाज नो अट्रैक्शन इन देहरादून दैट वे। लेकिन ऑन रोड टू चमोली यू हैव यमुनोत्री, यू हैव दिस चक्रासा, where you had that Jaunsar Bawar area is there, and where the research have been conducted. But the point is that today there was a news in the morning standard, maybe a very ordinary news, but maybe important for some people as well. What does it say? It is there in morning standard of today. Uttarakhand village puts cap on wedding expenses. कोई नई बात नहीं है, बहुत सारी कास्ट करती रहती है। जैसे दिल्ली में सिखों ने अनाउंस किया कि शादी दिन में होगी, तो रात का एक्सपेंस भी बचेगा, नशा भी बचेगा, फालतू के खर्चे भी बचेंगे। और कम्युनिटीज कीप डूइंग दैट वे। खाप कई बार ऐसे अनाउंस करती रहती हैं। What is great news about this? Because this news is about Jansari. Residents of Kandhar or Kandhar village in Uttarakhand, tribal region of Jaunsar Bawar, have passed a social bylaw limiting the gold jewelry married women can wear at wedding and family function. आप कहें तो बड़ा चेंज है, आप कहें तो कुछ भी नहीं। Why? The reason is ये जो जौनसारीज हैं मल्टी एथनिक ट्राइबल ग्रुप है। जैसे जो भूटियास हैं, पिथौरागढ़ में रंग हैं, जोहारी हैं, डिफरेंट एंडोगेमस ग्रुप्स हैं। उत्तरकाशी में जाट हैं, तोड़चा मारचा हैं, चमोली में they are different endogamous groups. Similarly, here also you have Brahmins, Thakurs, Badis means musicians, Lohars, ironsmiths, and Kolta. Kolta you can say as good as untouchable. तो इनमें से जो है ब्राह्मण्स और ठाकुर दे आर वेल ऑफ, वही दे कैन अफोर्ड टू वियर गोल्ड। कोल्टास का तो दे कांट इवन इमेजिन, बट स्टिल married women can now wear only three pieces of gold jewelry, namely a fully nose earring, kunde, and a wedding necklace, Mangal Sutra. All other heavy or additional ornaments have been prohibited only for marriage. Marriage में नहीं पहन सकते। उससे क्या उनकी प्रॉस्पेरिटी पे कोई अंकुश लग जाएगा? वो तो नहीं होगा। So it may be cosmetic, but still it is welcome because a remote community has decided.
Residents say the move will reduce conspicuous consumption, curb unnecessary spending, and encourage simplicity and social cohesion. It will be only in the marriage. They believe true equality in society comes from breaking down walls of display between rich and poor households. खाली सिर्फ डिस्प्ले को कम कर देने से क्या वो इक्वालिटी आ जाएगी? मैं तो नहीं समझता कि कोई इतना इरेशनल हो सकता है जितना कि ये रिपोर्टर है सेठी साहब। भरत सिंह राणा, राणा रिफ्लेक्ट्स ठाकुर, obviously a dominant caste of tuning, told that the treasure trove of distinct ethnic communities and traditional practices, distinct ethnic communities. This new initiative seeks to reduce economic disparity and promote simplicity in marital celebration. मैरिटल सेलिब्रेशन में तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी छिप जाएगी, पर उससे वेल्थ थोड़ी ना छिपती है। और वही फिर मैं जो हमेशा सवाल उठाता हूँ कि हु इज ए ट्राइब, तो क्या ये ठाकुर जो हैं, जो राजपूत हैं और जो ब्राह्मण हैं, कैन और शुड दे बी इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ ट्राइब? कई लोग जो हैं इन दोनों कास्ट में से, दे हैव बिकम सिविल सर्वेंट मोस्टली इन द स्टेट। इक्का दुक्का हो सकता है कि यूपीएससी में भी आए हों, कोशिश तो वो कर रहे थे जब तक मेरे को जानकारी थी, उसके ज्यादा मेरे को नहीं पता। तो इंश्योर दैट द रूल्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोड, 50,000 रुपए का जुर्माना है, नहीं करेगा कोई भी। मैसेज ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, फिर सुरेंद्र सिंह चौहान, चौहान फिर से ठाकुर होते हैं। तो डोमिनेंट कास्ट के लोग जो भी रूल्स डिसाइड करेंगे, ऑब्वियसली दीज विल बी फॉलोड। पर फॉलो कौन करेगा? वही ब्राह्मण और ठाकुर, क्योंकि बाकियों के पास तो उतनी ज्वेलरी होगी भी नहीं। तो वेदर इट इज ए न्यूज और इट इज नॉट, ये आप लोग डिसाइड करो। बट वन वे इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज, यू कैन से। हालांकि बहुत कुछ बाकी है, और इससे जो है सवाल भी उठता है कि ट्राइब कहना चाहिए इन लोगों को। ये ये हैवी ज्वेलरी डिस्प्ले एज इफ इट इज ए पंजाबी वेडिंग, ट्राइब में तो ऐसा नहीं होता आमतौर पर। और वैसे भी जब भी हम ट्राइब्स के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वी से ट्राइब्स आर पुअर, तो क्या हम पूरे ट्राइब को लेकर के प्लान करते हैं, सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट इज ऑलवेज फैमिली बेस्ड। ऑब्वियसली किसी भी कम्युनिटी में अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। तो फैमिली बेस्ड जब अप्रोच है, तो व्हाई नॉट दैट पॉवर्टी शुड बी फैमिली बेस्ड क्राइटेरिया? Why should be labeled as a tribe or a scheduled caste or things like that? Anyway, Jansaris में जो change है, in a way it's welcome, but still not a major change. It is in the direction of change that I say. Thank you.